Hello, guys. So, welcome back. I hope you all must be doing very well in your studies. In this session, we are going to continue the chapter Story of Cricket. It is chapter 7 of History, NCERT class 9th. Till our last sessions, we have studied about how cricket was started from a bat like hockey stick to the spread of cricket in different parts of the world, but how why it remained limited. We have studied all these things. Okay, today we will continue this chapter with the topic about cricket, how cricket started in India, and what was the important reforms that took place in India, and how cricket was affected in India by religion race. Okay, so it is going to be very interesting. Let us continue. इंडिया का जो फर्स्ट क्रिकेट क्लब था दैट वाज कोलकाता कैलकाटा क्रिकेट क्लब. ओके, एट द टाइम कोलकाता वाज नोन एज कैलकाटा. ओके, इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1792. Everyone please keep it in mind this thing. When was the first cricket club in India was formed? It was formed in the year 1792. Okay, in the 18th century. Okay, cricket, basically what we are talking about the religion race in cricket, in Indian cricket. So जहां यहां पे धर्म और फेस कलर की, स्किन कलर की तो मींस बात होनी है. तो इंडिया की जो फर्स्ट कम्युनिटी थी दैट वाज पारसी कम्युनिटी इन बॉम्बे. ओके, दे स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट. ओके, तो कम्युनिटी वाइज इंडिया में सबसे पहले क्रिकेट किसने खेलना स्टार्ट करा था? देवर पारसीज. ओके, एंड दे फॉर्म देयर क्रिकेट क्लब. व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर क्रिकेट क्लब? द नेम ऑफ द पारसीज क्रिकेट क्लब वाज ओरिएंटल क्रिकेट क्लब of Bombay. Okay, it was formed in the year 1848. Okay, you can see this is the first Parsi team of cricket club. Okay, Parsi cricket club, this is the team. This team also traveled in England. Okay, this team traveled to England to play some matches against them. Okay, so this was the first time when cricket was started in India on community basis. Okay, Parsis formed their, after the formation of Parsis club, Parsis formed their Gymkhana, Parsis Gymkhana. And why they formed there? What is Gymkhana? If you will be having a question in your mind that what is Gymkhana, it is kind of recreational group or something kind of recreational club for purpose of just entertainment. Okay, it is kind of recreational clubs formed by some people. Okay, or a group. Okay, so they formed their Parsis Gymkhana. And why they formed? Because they had fight with Britishers. Okay, of Bombay Gymkhana. और क्यों फाइट हुई थी? क्योंकि वो लोग पोलो खेलते थे और उनके क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पे पारसी क्रिकेट खेलते थे, उनके ग्राउंड में गड्ढे कर दिए थे. ओके, उन्होंने उनका ग्राउंड बॉम्बे जिमखाना के जो वाइट्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने पोलो खेलते हुए पारसीज का क्रिकेट ग्राउंड खराब कर दिया था. ओके, सो दे फॉर्म their own gymkhana, their own cricket, they were having their own cricket ground and all the space uh, to play the game. Okay, so first gymkhana was formed was Parsi Gymkhana. Okay, and how it was formed? It was formed on the dispute, due to the dispute over a cricket ground. Okay, तो जो पारसी जिमखाना जब बना, तो जो इंडिया में और भी रिलीजियस कम्युनिटीज थी. ओके, लाइक देयर वाज हिंदूज, देयर वर मुस्लिम्स. ओके, दे गॉट
आइडिया, तो उनको भी एक आइडिया मिला कि अपना अपना क्लब भी बनाते हैं। सो हिंदी कम्युनिटी फॉर्म द हिंदू जिम खाना, ओके, Muslim community from the Islam Gymkhana. Okay, this is because it is we are studying this all. Okay, how cricket was discriminated on the basis of religion and race in India. Okay, so पूरा कम्युनिटी के बेसिस पे इंडिया में क्रिकेट का स्टार्ट हुआ था। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि आज जो इंडिया में क्रिकेट इतना पॉपुलर है, ओके, क्रिकेटर्स इतने पॉपुलर हैं, है ना, बट इतना पॉपुलर गेम आज टुडे इट इज द इंडियन क्रिकेट टीम प्लेइंग लाइक इंडियन क्रिकेट टीम। देयर इज नो who is Muslim, who is Hindu, or who is Parsi, who is something like that, who is coming from which race. They are just Indians in today's cricket team. But आज से we are talking about 1930s 1940s, तो उस समय क्या कंडीशन थी? उस समय ये कंडीशंस थी। ओके, सो आप समझ सकते हैं कि हम कितना इवॉल्व होके आए हैं पिछले लगभग 100 सालों में, यहां तक इंडियन क्रिकेट को कितना मजबूत बनाया है, ओके, कितना अच्छा बनाया है, ओके, किन चीजों से निकल के। ओके, सो कम्युनिटीज, रिलीजियस कम्युनिटीज के बेसिस पे इंडियन क्रिकेट क्लब्स फॉर्म होने लगे। ओके, और ये आइडिया कहां से आया था? पारसीज जिमखाना से। ओके, तो बेसिकली जो था इंडियन क्रिकेट वो टोटली पहले सिर्फ और सिर्फ रिलीजन और रेस के बेसिस पे डिवाइड था। ओके, इंडियन जो फर्स्ट क्लास गेम्स हैं लाइक रणजी ट्रॉफी, ओके, एंड ऑल दिस टूर्नामेंट्स जो भी होते थे वो सिर्फ 4 टीमों के बीच पे होते थे, और जो क्या थी, रिलीजन या रेस के बेसिस पे, मींस गोरे या काले लोगों के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे वो सारे क्लब्स या टीम्स बनी हुई थी। और कौन कौन सी थी टीम्स थी? यूरोपियंस डोमिनेटेड बाय वाइट्स, ओके, पारसीज कम्युनिटी इन इंडिया, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, सो ये जो चीज थी ये बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था, है ना, एक दूसरे के अंदर हेट वाली फीलिंग थी। एंड एट द सेम टाइम, एट दिस टाइम यू एट द सेम टाइम इंडिया वाज फाइट गोइंग थ्रू, इंडिया वाज फाइटिंग फॉर फ्रीडम। ओके, सो आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती होंगी। मींस गेम चल रहा है, अच्छी चीज है, बट हम एज अ कंट्री फ्रीडम लेना चाहते हैं ब्रिटिशर्स से, बट हम एक साथ मिलके खेल नहीं सकते हैं। ओके, वहां पे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, ओके, वाइट हैं, ब्लैक हैं। ओके, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि एज अ कंट्री वी हैव इवॉल्व्ड सो मच, हम कितने आगे निकल आए हैं, कितने अच्छे तरीके से। ओके, सो थैंक्स टू द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ दैट टाइम। एंड ओके, सो यू जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे वो इट इज मेंशन्ड हियर कि क्रिकेट का जो डिवीजन था रिलीजन के बेसिस पे और ऑन द बेसिस ऑफ रेस, उस समय के जो प्रोमिनेंट लोग थे, जो जर्नलिस्ट थे, जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन सब ने इस चीज को मना किया। मींस इस चीज को ना, ये जो आइडिया था क्रिकेट क्लब्स का और क्रिकेट को डिवाइड करना मुस्लिम्स, हिंदूज और पारसीज और ब्लैक एंड व्हाइट में, सो उन लोगों ने, क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी जो सबको, सभी लोगों को एक साथ रख सकती थी, बट it was using in it was used in some other way. Okay, it was misused. Okay, so even Mahatma Gandhi criticized this. महात्मा गांधी ने भी इस चीज का विरोध किया था कि क्रिकेट जो टीम्स हैं उनका रिलीजन के बेसिस पे, टीम्स रिलीजन या रेस के बेसिस पे नहीं बनाई जानी चाहिए। देयर शुड बी वन टीम लाइक इंडिया। ओके, सो this was all how cricket was started in India, how it took shape. But by after we got freedom, everything got properly settled. And after the formation of first Indian cricket team in the year 1932, okay, फिर धीरे धीरे चीजें सेटल होती चलेंगी। एंड इन द ईयर 1947 we got freedom and then we played as a team। तो वो सारी चीजें फिर धीरे धीरे खत्म होती चलेंगी। एंड टुडे we have evolved as a one of the greatest team। okay, so this was all about cricket in India and how
it religion and race, these two factors impacted Indian cricket at that time when cricket was started in India. Okay, I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. Next we will understand the important topic of this lesson, that is the modernization of cricket, how cricket became so modern and became very popular around the globe. Okay, मींस क्रिकेट का मॉडर्न तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ. पहले सिर्फ टेस्ट मैचेस खेले जाते थे एंड टेस्ट मैचेस गोज ऑन फॉर 5 days. ओके, मींस बहुत सारे लोग इट इज टेस्ट मैचेस आर वेरी इंटरेस्टिंग, बट बहुत सारे लोग इसको थोड़ा सा बोरिंग भी मानते हैं बिकॉज 5 दिन तक गेम चल रहा है और कई बार उसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकल रहा है. ओके, सो दे फाइंड इट बोरिंग. ओके, बहुत सारे लोगों के लिए बोरिंग था. तो जो क्रिकेट बोर्ड्स थे या फिर जो मेन क्रिकेट बोर्ड था आईसीसी, ओके, इट introduced one day international. A new idea came, one day international matches. Okay, means कि एक मैच होगा जो 50-60 ओवर का मैच होगा. ओके, और जो एक मींस कुछ ही घंटों में, लगभग 7-8 घंटों में मैच, पूरा मैच खत्म हो जाएगा. ओके, जो गेम 5 दिन तक चल रहा था वो गेम सिर्फ 7-8 घंटों में खत्म हो जाएगा. मींस तुरंत एक ही दिन में रिजल्ट मिल जाएगा. ओके, सो first one day international was introduced. This was the idea and how it was introduced, जो हमने अभी डिस्कस किया. Okay, so first international one day international ODI match was played between England and Australia. Okay, in the year 1971. Everyone please note it and keep it in mind. Okay, उसके पहले सिर्फ टेस्ट मैचेस ही खेले जाते थे. ठीक है, सो ये आइडिया लोगों को बहुत अच्छा लगा, है ना. ये आइडिया जो ओडीआई क्रिकेट का जो आइडिया था, इट बिकेम वेरी पॉपुलर. मींस बहुत अच्छा लगा लोगों को. ठीक है, क्योंकि 5 दिनों तक लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ रहा था. एंड द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, द जो फर्स्ट ओडीआई क्रिकेट था दैट वाज ऑफ 60 ओवर्स. ओके, 60 ओवर्स का गेम होता था जो फर्स्ट ओडीआई था. अब तो 50 ओवर्स का होता है. ओके, इट गॉट चेंज्ड. ओके, पहले 60 ओवर्स का गेम होता था. ठीक है, सो ओडीआई का आइडिया सबको बहुत पसंद आया, है ना. सो द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज प्लेड, पहला ओडीआई होने के 4 साल बाद फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज प्लेड इन द ईयर 1975. ओके, इट वाज वन बाय वेस्ट इंडीज. Okay, you can see this pic. This is West Indies team after winning first cricket world cup. Okay, this is England, West Indies cricket team. West Indies won their first won the first cricket world cup. Okay, और ये बहुत सक्सेसफुल टूर्नामेंट हुआ. और उसके बाद 1979 में फिर से सेकंड वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ. एंड आफ्टर दैट इट टेक प्लेस आफ्टर every 4 years. ओके, ये तो सबको पता है. एवरीवन इज सो इंटरेस्टेड टू वॉच द क्रिकेट मैचेस. ओके, अभी लास्ट जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था दैट वाज हेल्ड इन 2019 एंड नेक्स्ट विल बी हेल्ड इन 2023. ओके, सो बहुत सारे ओवर द इयर्स, धीरे धीरे कई सालों तक क्रिकेट में बहुत सारे चेंजेस होते गए. ओके, एक गेम जो हॉकी स्टिक के बैट से शुरू हुआ था, आज वो इतना पॉपुलर हो गया कि उसका एक वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ और वो एक बहुत सक्सेसफुल टूर्नामेंट हुआ. यू कैन सी दिस क्राउड कि उस समय क्रिकेट कितना पॉपुलर हो चुका था टिल 1975 एंड 1980s. ओके, तो ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे आइडियाज, नए इनोवेटिव चेंजेस आते गए. ठीक है, क्रिकेट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए. और क्या क्या चेंजेस थे कि पहले आप ये देख सकते हैं, जो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप था देयर वाज अ वाइट ड्रेस, टेस्ट क्रिकेट वाली ही ड्रेस लोग पहन रहे थे. बट द इंट्रोडक्शन ऑफ कलर ड्रेसेस बाय 1990s.
Okay, it was done in color dresses came in the year in the year 1990s. Okay, so it became more attractive, the game became more attractive, फिर डे नाइट मैचेस होने लगे. ओके, ठीक है. प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स मींस पैड्स, ग्लव्स, ऑल दीज थिंग्स, धीरे धीरे और गेम अच्छा होता चला गया. ठीक है, और मोर अट्रैक्टिव, लोग खिंचते चले गए इसकी तरफ देखने के लिए. ओके, फिर देर पहले लोग केवल स्टेडियम में जाके देखते, बट व्हाट क्रिकेट बोर्ड स्टार्टेड, क्रिकेट जो बोर्ड्स थे अलग अलग देशों के, उन्होंने टेलीकास्ट राइट्स बेचना स्टार्ट कर दिया. मींस कि आप अपने घर में बैठे भी अगर आपके पास में टीवी है तो आप क्रिकेट मैचेस को देख सकते हैं. तो इन सब चीजों ने क्रिकेट मैचेस, जो क्रिकेट बोर्ड्स थे, they became very rich. The Indian Cricket Board, BCCI, it's the most richest cricket board in the world. Okay, और वो क्यों है? Because due to telecast right, due to endorsement. Okay, और इसका जो फायदा था, क्रिकेटर्स वर लाइक द सेलिब्रिटीज, है ना. क्रिकेटर्स को एक बड़ा सेलिब्रिटी माना जाने लगा. तो जो बड़े बड़े ब्रांड्स थे, है ना, वो अपना एडवर्टीजमेंट करवाने लगे क्रिकेटर से. क्रिकेटर्स ब्रांड एम्बेसडर बन गए. ओके, दे स्टार्टेड एडवर्टीजमेंट, दे गॉट इन्वॉल्व इन एडवर्टीजमेंट एंड बिकेम सो रिच, है ना. मींस आप देखिए कि क्रिकेट वी हैव स्टार्टेड, इसी चैप्टर में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि देयर वाज नॉट सो मच मनी इन द गेम एट दैट टाइम, जब प्रोफेशनल्स ये गेम खेलते थे. ओके, इन द ईयर 1700 और 1800, है ना. बट नाउ वी आर डिस्कसिंग क्रिकेटर्स बिकेम ब्रांड एम्बेसडर्स, दे आर गोइंग वेरी रिच. Okay, so this is how all these things got changed for the game. Okay, पहले आप देखिए कुछ इस तरीके के सेलिब्रेशंस होते थे. नाउ यू कैन सी दिस सेलिब्रेशन. ओके, दिस इज वर्ल्ड कप 1975, दिस इज वर्ल्ड कप 2011. ओके, ये 2011 वर्ल्ड कप का सेलिब्रेशन है. सो यू कैन सी द डिफरेंस. ओके, सो उसके बाद द इंट्रोडक्शन ऑफ big league tournaments like big leagues like IPL, BBL, Big Bash League. Okay, all these played a very important role in making cricket more attractive or attracting the audiences. Okay, so this was all about the cricket, how it was how it got started. Okay, from before 500 years ago, how it came out of England, how Australia became the very center point of cricket by uh, publishing the revision of laws in the year 1788. Okay, what was the impact of religion in Indian cricket? Okay, how it divided the people on the basis of religion and race in India. Okay, and how it got modernized. Okay, the introduction of first only, then before that the only test matches was played, but the introduction of one day international totally changed the game. Okay, so this was all about this chapter, that is story of cricket. I hope you have enjoyed this chapter so much. It is not just a theoretical chapter but a wonderful story. Okay, so we are going to end this session. Till then, all the best. Thank you so much.